So today our topic is skewness and courtesy. So we will discuss here. First is skewness. Skewness means lack of symmetry, or we can define it as skewness. Define an idea about the shape of the curve which we can draw with the help of the given data. Okay. For example, if we have given a data, we have given a number of observations. So we will form the curve using that data. Then the shape of the curve will give an idea about the skewness of that distribution. So a distribution is said to be skewed if it follows these three conditions, that are, first one is mean, median and mode falls at different points. That is, mean should not be equal to median and that should not be equal to mode. अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमने कर्व बनाया है उसके अंदर हमारा जो मीन है, मीडियन है, मोड है, वो तीनों जो है अलग अलग पॉइंट्स पे आने चाहिए, तभी हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोल सकते हैं दैट इज स्क्यूड. ठीक है. Then our second condition is quartiles are not equidistant from median. Quartiles should not be equidistant from median means medians के जो हमारे quartiles होते हैं Q1 Q3 they should not be at equal distance from the median. Okay. Then third point is the curve drawn with the help of the given data is not symmetrical but stretched more to one side than to the other. हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड तब बोलेंगे जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे, जो भी हमारा डाटा था तो जो हम उससे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए. सिमेट्रिकल मीन्स दोनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए. हमारा है तो एक साइड ज़्यादा होना चाहिए लेफ्ट साइड और राइट साइड ज़्यादा होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है. आगे हम देखते हैं कितने टाइप्स के स्क्यूनेस हम कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेके. Then measures of skewness are, first is we can define skewness is equals to m minus md, and here m is our mean and md is at the median. Then sk is equals to m minus mo, that is m is mean and mo is the mode of the distribution. We can define it as like this. And if we want to define these in terms of quartiles, then we can define skewness is equals to q3 minus median minus bracket median minus q1. So these are the absolute measures of skewness. As in dispersion, for comparing two series we do not, जब हम dispersion में calculate कर रहे थे किसी भी दो series को compare करने के लिए, हम absolute measures को जो है ignore कर रहे थे, हम उनको calculate नहीं कर रहे थे, but we calculated the relative measures and that is known as the coefficients of skewness, which are pure numbers independent of units of measurement. अब coefficient है, coefficient की कोई unit नहीं होती. ठीक है. The following are the coefficient of skewness. So ये हमारे coefficient of skewness है कुछ. The first one is given by the professor Carl Pearson, that is skewness is equals to m minus mo upon sigma, that is mean minus mode upon sigma, where sigma is our standard deviation of the distribution. अब if mode is ill defined, अब यहाँ पर जो ये term use करी गई है हमारी, the mode is ill defined. ill defined mode का meaning होता है basically, for example if we have given a data set, तो अगर उस data set के अंदर किसी की भी फ्रिक्वेंसी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ की अगर सेम आ जाती है उसको हम बोलते हैं आर मोड इज़ इल डिफाइंड. सो if our mode is ill defined then we will use the relation mo equals to 3md minus 2m. ये हमारा एक मीन मीडियन मोड मीडियन का एक रिलेशन है जो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा था जब हमने मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ें पढ़ी थी. मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. एंड फॉर अ मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा. So Carl Pearson professor give the limits for this coefficient of skewness that is plus minus 3, that is it ranges from plus 3 to minus 3. In practice these limits are rarely attained. Skewness is positive. अब इन्होंने क्या डिफाइन किया था कि स्क्यूनेस हमारा पॉजिटिव होगा जब हमारा मीन जो है मोड से ज़्यादा होगा या हमारा मीन जो है मीडियन से ज़्यादा होगा, एंड इट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड if our mean is less than mode or mean is less than median. So this is the term positively skewed, negatively skewed, here defined by the Carl Pearson coefficient. Next is our Professor Bowley's coefficient of skewness, which is based on quartiles. So he gave the formula skewness is equals to q3 plus q1 minus 2 median upon q3 minus q1. So this is the formula which is based on our quartiles.
there are some remarks, that is Bolle's coefficient of skewness is also known as we see here, he defines skewness on basis of quartiles. So it is also known as quartile coefficient of skewness and is especially useful in situations. अब हम quartiles के ऊपर एक फॉर्मूला ले रहे हैं, तो बेसिकली हम इनको उन्हीं सिचुएशंस में यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारा quartile यूज़ होगा या मीडियन यूज़ होगा. तो अगर पर पियर्सन कोफिशिएंट जो है वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते. कहाँ पे दो सिचुएशन है, व्हेन आर मोड इज़ इल डिफाइंड और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आर प्रेजेंट इन द डाटा. ठीक है. और अगर हमारे पास जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ओपन एंडेड क्लासेस या अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है, वहाँ पर हम अपना पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज़ नहीं कर सकते. Okay, so we see that from this formula, Bolle's coefficient of skewness, if we put here q3 plus q1 minus 2 median upon q3 minus q1, if we want मतलब if अगर हमारा q3 माइनस मीडियन जो है अगर हम उसको मीडियन माइनस q1 के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमारा इसके ज़ीरो आ जाएगा. एज आई हैड ऑलरेडी डिफाइंड दैट अगर हमारा स्क्यूनेस बीच में आ रहा है, मीन्स इक्विडिस्टेंट नहीं है क्वार्टाइल से, तो वो हमारा स्क्यूनेस नहीं माना जाता है. तो वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा लाई करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या फिर जो उसके पॉइंट्स है वो राइट साइड में जाना चाहिए, तभी हम उसको डिफाइन करते हैं कि इट इज़ स्क्यूड. सो वी ऑब्जर्व दैट इफ़ q3 माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन माइनस q1 देन आर SK विल बी ज़ीरो. सो दिस इम्प्लाइज दैट फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स, तो हमारा SK ज़ीरो है. मोर ओवर स्क्यूनेस इज़ पॉजिटिव, बट स्क्यूनेस पॉजिटिव कब आएगा, अगर मान लो हमने इक्वल रख दिया तब तो हमारा ज़ीरो आ रहा है. तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कब आएगा, जब q3 माइनस मीडियन विल बी ग्रेटर देन मीडियन माइनस q1, दैट इज़ q3 प्लस q1 मीन्स सम ऑफ third quartile and first quartile is greater than twice of our median, and skewness will be negative if q3 minus median is less than median minus q1, that is sum of third quartile and first quartile is less than twice of our median. So third is limits for Bolle's coefficient of skewness. So if we have two real positive numbers a and b, a and b greater than 0, then the modulus value of the difference of a minus b is always less than or equal to the modulus value of sum of a plus b, that is a minus b. हमने मॉड्यूलस वैल्यू ली है a माइनस बी की, जो हमने दो पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए थे, विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू a प्लस बी, दैट इज़ वी कैन डिफाइन इट एज मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 1. सो जो ये टर्म है ये डिफाइन करी है बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब बोलेस ने इसकी कुछ लिमिट दी है, वो है हमारी -1 to 1. वो कैसे आई वो हम देखते हैं. तो एज वी नो q3 माइनस मीडियन एंड माइनस q1 आर बोथ नॉन नेगेटिव, देयरफॉर हम a को एज्यूम कर लेंगे q3 माइनस md एंड b को कर लेंगे मीडियन माइनस q1, एंड वी विल पुट दीज टू इन दिस फॉर्मूला a माइनस बी अपॉन a प्लस बी. सो जब हम इसको पुट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, स्क्यूनेस मॉड्यूलस ऑफ स्क्यूनेस लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1. तो -1 to 1 से जो बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है इट विल रेंज फ्रॉम -1 to 1. सो वी कैन सी दैट स्क्यूनेस इज़ +1. हमारा +1 तब आ रहा है जब हम मीडियन माइनस q1 को 0 ले रहे हैं. अब ऊपर इक्वेशन में देखो, जब हम मीडियन माइनस q1 को 0 पुट कर देंगे तो हमारा स्क्यूनेस +1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे की टर्म, तो 1 आएगा. देन अगर हम स्क्यूनेस अगर q3 माइनस मीडियन को हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारा q3 इक्वल्स टू md हो जाएगा. जब यहाँ पर q3 माइनस md हम 0 पुट करेंगे ऊपर नीचे तो हमारा q3 इक्वल्स टू md आ जाएगा, दैट इज स्क्यूनेस फिर हमारा आ जाएगा -1. तो इट रेंजेस फ्रॉम -1 to 1 अकॉर्डिंग टू बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. Now we can clearly understood that values of coefficient of skewness obtained by Bolle's formula and Pearson's formula are not comparable. दोनों की अलग अलग फॉर्मूला है तो we cannot compare this. बेशक से उनके जो skewness है वो 0 आ रहा है जब हम symmetrical distribution ले रहे हैं, but it implies the absence of skewness. मतलब वही हुआ symmetrical distribution का, it is the absence of skewness, that is the distribution is symmetrical. यही टर्म नीचे लिखी हुई है जो मैंने बोली. तो इट मे इवन हैपन दैट वन ऑफ देम गिव्स पॉजिटिव स्क्यूनेस वाइल द अदर गिव्स नेगेटिव स्क्यूनेस, हमने अभी देखा ऊपर.
नाउ नेक्स्ट इज इन हमने बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में देखा जो डिस्टर्बिंग फैक्टर ऑफ वेरिएशन इज एलिमिनेटेड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ दिस। हमारी क्वार्टाइल हम जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है वो हमारा कैसे आ जाएगा, हमने देखा था Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1 by the measure of dispersion Q3 minus Q1, that is our quartile range. Okay, we can found the disturbing factor of variation. बट इसकी एक लिमिटेशन ये है इस कोफिशिएंट की, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रल 50% ऑफ डाटा एंड इग्नोर्स द 50% रिमेनिंग डाटा ऑफ जो एक्सट्रीम जो हमारी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसका 50% डाटा ये इग्नोर करता है। ये हमारी लिमिटेशन है। अब हमारे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो मूवमेंट्स पे बेस्ड अपॉन मूवमेंट्स है वो क्या होंगे, हमारे मूवमेंट्स से हमने क्या देखा था, हमने फॉर्मूलेज देखे थे कुछ β2 μ1 बाई μ2 स्क्वायर होता है, B4 μ2 स्क्वायर अपॉन μ4 स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है एस क्यूनेस इज इक्वल्स टू √β1 β2 प्लस 3 अपॉन, ये बस याद करने की चीज़ है, 2 × 5 β2 माइनस 6 β1 माइनस 9 वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। सो अगर हम मान लो इसमें β1 को वैल्यू पुट करते हैं 0 या β2 को हम -3 पुट करेंगे तो हमारा स्क्यूनेस 0 आ जाएगा, दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट सिंस वी नो दैट β2 इक्वल्स टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा इस केस में स्क्यूनेस 0 तभी होगा अगर हम β1 को 0 वैल्यू पुट करेंगे। दस फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन β1 इज 0। एक टर्म और हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमारा β1 0 है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पुट कर सकते हैं। सो इन दिस रिस्पेक्ट β1 इज टेकन टू बी अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ओके, देन वी कैन डिफाइन, अगर हम इसको ग्राफिकली अब देखें, हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब डाटा जो गिवन था उसका हम जब ग्राफ में ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, हमने बोला था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारा स्क्यूनेस 0 होता है, या तो हमारा लेफ्ट साइड में ज़्यादा आना चाहिए या राइट साइड में ज़्यादा लाई करनी चाहिए पॉइंट्स, तब उसको हम बोलते हैं दैट इट इज़ स्क्यूड। सो वी कैन सी here x bar that is mean equals to mod equals to median. So this is symmetrical distribution। यहाँ पर लिखा हुआ है symmetrical distribution की क्या थी टर्म, मतलब एक कंडीशन थी ना जब हमारे मीन मीडियन और मोड जो है वो इक्वल नहीं होने चाहिए अगर हमें स्क्यू चाहिए, पर अगर ये चीज़ इक्वल हो गई तो ये हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, तो यहाँ पर स्क्यूनेस हमारा 0 हो जाएगा। बट वी कैन सी इस ग्राफ में देखो हमारा मीन इस साइड आ रहा है, मोड इधर है, मीडियन इस साइड है, तो यहाँ पर हाई कर्व ड्रोन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा इज स्ट्रेच्ड मोर टू द राइट। तो यहाँ पर हमारा मीडियन और मीन इस साइड आ गया, तो ये स्ट्रेच किस साइड हो रहा है ज़्यादा हमारा, वेट ये हमारा राइट की तरफ ज़्यादा, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर ये नेगेटिव साइड की तरफ स्ट्रेच्ड होता है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। Then comes our term kurtosis. Kurtosis we can define it as like हमने स्क्यूनेस से देखा, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स निकाले थे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन निकाले थे, तो हमने देखा था ये हमें एक कंप्लीट आइडिया नहीं देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। सो ऑल दीज कर्व्स ए बी सी आर सिमेट्रिकल अबाउट मीन एंड हैव द सेम रेंज। अब हम इसका कर्व देखते हैं, हमारा कर्टिसी का कर्व, पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। वन मेज़र विच प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने एक मेज़र दिया था कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व, और विच इज़ नोन एज कर्टिसिस। मीन्स कर्टिसिस हमें क्या बताता है, कर्टिसिस हमें बताता है एक हमने जो कर्व ड्रॉ किया है उसकी पिकेडनेस को या फ्लैटनेस को, उससे हम मेज़र करते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है। मेज़र करते हैं हमारा कि कर्टिसिस कैसे शो करेंगे हम कर्व में, तो इट इज़ मेजर्ड बाय द कोफिशिएंट β2 or the its derivation gamma 2 given by β2, we know the formula of β2 is equals to μ4 upon μ2 square and gamma 2 is β2 minus 3। so we can see here यहाँ पर हमारा जो एक कर्व है, 3 कर्व हमने बनाए हुए हैं, एक कर्व हमारा बीच वाला है जो मीडियम है, मतलब ना फ्लैट है ना, मतलब ना ज़्यादा पिकेडनेस है, और जो नीचे है बीच में जो आ रहा है हमारा वो ए है, उससे नीचे जो है हमारा वो बी है, और उससे ऊपर हमारा सी है। तो हम टाइप ए को बोल सकते हैं, ना वो फ्लैट है ना ज़्यादा पीक्ड है, तो इसको हम नॉर्मल कर्व बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसके लिए एक टर्म यूज़ करी गई है मेसोकॉर्टिक कर्व। इस कर्व के लिए β2 हमारा 3 होता है एंड गामा 2 इज़ 0। अब हम बी को यहाँ पर हमारा जो ये बी वाला
कर्व है, मतलब जो हमारा नीचे वाला कर्व है, इसमें हम देख सकते हैं ये फ्लैटर है नॉर्मल कर्व से, तो इसको हम नाम देंगे प्लैटिकर्टिक कर्व। यहाँ पर है, एक मिनट, इसको हम बोलेंगे प्लैटिकर्टिक कर्व। इसमें हमारा बीटा टू जो है वो लेस देन 3 होता है, गामा टू लेस देन 0 होता है। और जो हमारा सबसे ज़्यादा पीक्ड कर्व है, जो हमारा टाइप कर्व था सी जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक कर्व। ठीक है, इसके लिए हमारा बीटा टू है जो वो ग्रेटर देन 3 होगा, और गामा टू हमारा ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ें कुछ कंडीशन जो यहाँ पर यूज़ करी गई है, जिसमें बीटा टू की वैल्यू कहीं 3 है, कहीं -3 है, कहाँ पर हमारा 0 होगा, कहाँ पर हमें गामा टू 0 लेना है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ये तीनों कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ like and share and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get all the notification of the videos that I will be uploading. Okay, so thank you. In next lecture we will be discussing our next topic, so thank you.